morning, students. Now let's come to our next topic, that is operations on matrices. So here we will come to know about what is addition of the two matrices and how we can do the subtraction of the two matrices. But one thing you should know, that before doing addition or subtraction of the matrices, we should follow one rule, that is only those matrices they can be added or subtracted which have the same order. Like I have written here example, that is if A is a matrices of elements 10, 2, 13 and 4. So it has 2 rows and 2 columns. So what will be the order of this matrix? That will be 2 by 2. Similarly, I have B matrix, that is 1, 4, 15, 5. So this matrix is also 2 by 2 order. Since these two elements they have same order, so we can easily add or subtract these matrices. So what will, very simple to add the two matrices and subtraction of two matrices, what we have to do is just we have to add the corresponding elements or subtract the corresponding element. So here A plus B, what I have written 10. This is my A11 element. What is this element? This is nothing but A11. First row, first column. What is this element? We know that it is A12. That is first row, second element. Similarly, what will be this? Because this is B matrix, so I will say, let's see B11. What will be this? I will say that B12. So just what I have to do is that corresponding elements को हमने add कर देना. Like here, I will add 10 plus 1, 2 plus 4, 13 plus 15, then 4 plus 5. So what will be my resultant matrix? C. That is nothing but 10 plus 1 will be 11. 2 plus 4 will be 6 and 13 plus 15, that will be 28, and what will 4 plus 5 will be 9. So this will be my addition of the two matrices. Now what we will do with the subtraction of matrices, if I have same matrices, let's do the subtraction of these two matrices. What I will do, corresponding elements को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है. So what will be 10 minus 1, 2 minus 4, 13 minus 15 and then 4 minus 5. What I will get? The resultant matrix C, that is will be equal to 10 minus 1 will be 9. So 2 minus 4, that will be minus 2. 13 minus 15, that will be minus 2. And 4 minus 5, that will be equal to minus 1. But one thing you should know, that if I subtract A minus B, A में से अगर मैं B को निकालती हूँ या B में से A को निकालती हूँ, the result of the two matrices that will be different. So here A minus B will may or may not be equal to one another. So here let's do B minus A. What I will get? If I do B minus A, I will get what is 1 minus 10, 4 minus 2, 15 minus 13, 5 minus 4. So what I will get the matrix? That is minus 9, 2, minus 2. No, it is 2. 15 minus 13 will be 2. So can you, what you observe? The sign of the two matrices that has only changed. So this is all about addition of two matrices and subtraction of two matrices. Let's come to how to multiply a matrix. Before going to multiplication, which is very important for this, matrices operations का एक बहुत important हिस्सा है multiplication. कैसे करते हैं बच्चे? अक्सर multiplication में गलती करते हैं दो matrices की. तो उससे पहले हम ये करते हैं कि how we can multiply a matrices multiplication by a scalar. What do you mean by a scalar? Scalar जो है, अगर हम जनरल वे में k ले लेते हैं, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक जनरल मैट्रिक्स है, that is A11, A12, A21, A22. So what is k times a? That will be nothing but हर एलिमेंट जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k से. So this will be k times A11, k times A12, k times A21, k times A22. So this means अगर मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ली 1, 2, 3, 4. So what will be 3 times A? अगर मैंने करना है, what will be this? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. So this will be my multiplication by a scalar quantity. So let's come to the next topic. Let's do some examples. Suppose मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चे कि let's do one question. If I have A is equal to, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है. So if A is equal to nothing but that is 1 2 3
3 2 1, and B is nothing but 3 minus 1 3, minus 1 0 and 2. So they said find 2A minus B. It's very simple. ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं. कुछ नहीं करना आपने, जो भी मेरी मैट्रिक्स A है उसको मैंने स्केलर क्वांटिटी कौन सी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना. जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसको मैंने B में से सब्ट्रैक्ट करना. सो 2 टाइम्स 1 2 3, 3 2 1 माइनस 3 minus 1 3 minus 1 0 2. स्टूडेंट्स आप क्या गलती करते हो, आप क्या करते हो, पहले इन दोनों को माइनस कर देते हो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सबसे पहले मुझे इस चीज को करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल गेट 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. देन मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट आई विल डू, 2 minus 3, 4 minus minus plus, 6 minus 3, 6 minus 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 plus, 4 minus 0, 2 minus 2. So what I will get here, the matrix will be nothing but 2 minus 3, हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पे, minus 1, 4 plus 1 will be 5, 6 minus 3 will be 3, and what will be this 7, 4 minus 0 will be 4, and 2 minus 2 will be 0. So this I can say this is a C matrix, which will be the which will be the new matrix by operations 2A minus B. Now let's move to another example, that is I am doing NCERT examples here, because if you understand the examples you can easily solve the exercise. So let's move to one more example, that is if I have A is equal to, if A is equal to 8 0 4 4 minus 2 and 3 6, if A is given to be this and B is given to be 2 minus 2, then 4 2 minus 5 and 1. He says find the matrix X. We are to find X such that 2A plus 3x is equal to 5 times B. So how we will do this? What we will do? 3x को यही रहने देंगे. Take 2A on that side. So then what will be value of x? That is 1 by 3 into 5 times B minus 2E. So इसमें हमें पहले 5 times B स्केलर से मल्टीप्लाई है, 2 times A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 3 से हम डिवाइड कर देंगे. सो हाउ वी विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम है 5 बाई माइनस 2A. इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? 5 times A means, sorry, 5 times B means 5 into 2 minus 2 4 2 minus 5 1 minus 2 times, what is my A matrix? 8 0 4 minus 2 3 and 6. अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आया? 5 2s are 10 minus 10 20 10 minus 25 and 5. और सबसे पहले तो ये बात है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, कितने रोज है? 3 रोज और 2 कॉलम्स, और इसका भी 3 रोज और 2 कॉलम्स, इसलिए हम इसके ऊपर ये ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई होती है. So what will be this? 2 8s are 16, 2 0 0, 2 4 8 minus 4 6, 2 6 are 12. अब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया. So 10 minus 16 will be minus 6,
-10 और -2 will be -12. 20 -8 will be 12. 10 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. So 10 plus 4 will be 14. -25 -6 -31. 5 -12 will be -7. So this comes out to be 5b -2a. अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से. So अगर मैं इसको 3 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि मेरा हर एक एलिमेंट किससे डिवाइडेड है, 3 से. So I will write it as -6/3, -12/3, 12/3, 14/3, -31/3 and -7/3. आप इसको मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स आ जाए. आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स को 6 को डिवाइड किया, इट विल बी -2, -4, 4, 3 4s are 12. So this will be like this only. Then this will be remain same, and this also will be. So this is how we can find the value of x. So let's move to one more example जो बहुत important है. That was example 8 आपका NCERT का. So let's move to example number 9. उसको हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है. एग्जाम्पल 9 को हम करने से पहले देखें क्या करना है. हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे. इफ x प्लस वाई इज गिवन टू बी 5209 एंड x माइनस वाई इज गिवन टू बी 36 0 -1. दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है. ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो 2/2 एंड दिस इज ऑल्सो 2/2. हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y. अब ना मुझे y तो पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ उन्होंने एक बार दोनों मैट्रिक्स की एडिशन दी हुई है, एक बार मुझे दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन दी हुई है. मुझे x और y कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एडिंग बोथ द मैट्रिसेस. तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई. जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं तो मेरे पास क्या आया, y और y कैंसिल हो गया, आई गेट 2x. सो दिस कम्स आउट टू बी 2x. सो x प्लस वाई का मतलब 5209 प्लस 360 माइनस 1. So that means 2x comes out to be, I write here 2x. मेरे पास क्या आ गया, दोनों को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड मेरी क्या बन गई, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. 9 - 1 8, यही बनेगी. फिर से देखो, x प्लस वाई मैट्रिक्स ये है, x माइनस वाई मैट्रिक्स ये है. मेरे पास दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर दिया. ठीक है जी. जब मैंने दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, y और y कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स क्या आ गया, 2x. x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई लिखा, x माइनस वाई की जगह x माइनस वाई लिखा. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया. व्हाट आई एम लेफ्ट विद, x विल बी, ये हाफ इधर चला जाएगा, 1/2 8 8 0 8. सो हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी 4 4 0 4. सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट y के लिए हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर मैं ऐड करके मेरे पास x की वैल्यू आ रही है तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी. कैसे, देखो, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1. तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई. सो दिस विल बी 5 - 3 2 2 - 6 -4 0 - 0 0 9 माइनस माइनस प्लस 10.
व्हाट दिस कम्स आउट टू बी, ये क्या बन गई मैट्रिक्स मेरे पास, ये x कैंसिल हो गया, सो आई गेट 2y -4 0 and 10. So this implies what will be value of y, इसका 1/2 कर देंगे, 2 -4 0 10. So y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे, 1 -2 0 and 5. So this way we can solve the, ये हमारे पास x आ गया और ये मेरे पास y की वैल्यू. Clear to all of you? Now students, let's go to next topic, that is multiplication of two matrices. It is very important to learn how to multiply two matrices. बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत गलतियां करते हैं. So let's do how to multiply two matrices. दो कंडीशंस जो मेन है हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए. फर्स्ट कंडीशन इज, अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, अगर A मैट्रिक्स है जिसके i j कॉलम्स है और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, m का मतलब m रोज है और n कॉलम्स है. दूसरी मैट्रिक्स B है, उसके p रोज है और q कॉलम्स है. सपोज दो मैट्रिसेस हैं. मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिसेस की तभी पॉसिबल है, मैं इसको A B तभी लिख सकती हूं अगर मेरे पहली मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस का कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि n that should be number of columns of this matrix, that should be equal to number of rows of the second matrix, that is n should be equal to p. सेकेंड कंडीशन क्या है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक गाइडेड मैट्रिक्स बना लेनी चाहिए. क्योंकि जब हमने, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, m इंटू एन p इंटू क्यू, तो हमें ये पता लग गया कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसकी आने वाली है aij, जो नई बनेगी a और b को मल्टीप्लाई करके, तो मुझे ये पता लगा कि ये जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, m इंटू क्यू, क्योंकि ये तो सेम हो जाएंगे. सो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी इक्वल टू m इंटू क्यू ऑर्डर की बनेगी. ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं एक गाइडेड मैट्रिक्स बना लूंगी. लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 6 9 2 and 3, ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी. सेकेंड मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है बताओ, ये रो है, कितनी रोज हुई, 2 रोज हुई, और कितने कॉलम्स हुए इसमें, 2 ही कॉलम्स हुए. ये C1 है, ये C2 है, और ये मेरी R1 है और ये मेरी R2 है. तो 2/2 मैट्रिक्स हो गए. इसमें कितनी रोज है, R1 और R2, 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हो गए मेरे पास, ये हो गए C1 C2 C3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम. तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 rows and 3 columns. So here you can see that number of columns of this matrix, number of columns of first matrix, that is A, that is 2, and they are equal to number of rows of the second matrix. So this means what I have, this 2 is equal to 2. इसका मतलब मेरी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, सपोज मैं लिख देती हूँ A और B को, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी, 2 इंटू 3. सो दिस मीन्स मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसके 2 रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे, 3 कॉलम्स होंगे. सो दिस मीन्स R1 रो और R2 रो और C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम. अब मैं सबसे इजी वे है कि मैं गाइडेड मैट्रिक्स बना लूंगी. इसकी गाइडेड मैट्रिक्स मींस पहला एलिमेंट मुझे पता है A11, फिर A12, फिर A13, सिमिलरली A21, A22, A23. बस अब मुझे इनको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसका मतलब व्हाट इज AB, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8, that's it. तो मैं कैसे जाती हूँ,
हमेशा जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम इस तरह से गो स्ट्रेट एंड देन कम डाउन। सो दिस मीन्स हमने जब भी मल्टीप्लाई करनी है, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट गाइडेड मैट्रिक्स का भरना है तो मुझे पता है कि वो A11 है। A1 मीन्स फर्स्ट रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम उठाना है। फर्स्ट रो मेरी कौन सी है? 6 और 9, और कॉलम कौन सा है मेरा? 2 और 7। यही है ना, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है। सो इनको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ? 6 will get multiplied by 2 plus 9 into 7 this way. So this comes out to be 6 2s are 12, 9 7s are 63. So this comes out to be 75. तो मेरा A11 कॉलम जो है वो मैंने फिल कर लिया, दैट इज 75। जब आपको इसको करने की प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की तो हम डायरेक्ट कर जाते हैं, फिर हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स डू विद A12। अगर मैंने करना है A12 क्या हो गया? फर्स्ट रो लेनी है मुझे 6 9, और कॉलम कौन सा लेना है? 6 9, सेकंड कॉलम लेना है। सो व्हाट विल बी दिस? 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 117। सिमिलरली अगर मुझे A21 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? लेट मी रब दिस। हाँ जी, मुझे A21 बनाना है, इसका मतलब सेकेंड रो। अब मेरे को सेकेंड रो को लेना है, दैट इज 2 and 3, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। सफिक्सेस को देखिए, इसके फर्स्ट कॉलम इज 2 और 7, ठीक है जी। सो दिस विल बी 2 into 2 plus 3 into 7, so this comes out to be 4 plus 21, so this comes out to be 25। हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, A13। so what will be A13? फर्स्ट रो और 08 थर्ड कॉलम। सो दिस विल बी 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 8 जा 72, तो मेरे ये तीनों पूरे हो गए, ठीक है जी। A11 A12 A13। सिमिलरली A21 निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 25। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड A22 and A23। so let me write their values. They come out to be A22 and A23, 39 and 24। सो मेरी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे आई वो कौन सी आ गई? व्हाट इज माई A11? 75। व्हाट इज माई A12? 117। एंड व्हाट इज माई A13? 72। A21 25, A22 and A23। दिस वे वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन। सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें अगर पता होगी कि किस ऑर्डर की बनेगी तो मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आता है आपके एग्जाम में इस तरह का। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी लगेगा, बट गलती नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं तो गाइडेड मैट्रिक्स के थ्रू करिए इसको, सो दैट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, दैट इज A is given to B 1 2 3 3 -2 and 1 4 2 and 1। He says show that, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में आ जाते हैं, जैसे दैट A क्यूब माइनस 23 टाइम्स A माइनस 40 टाइम्स I is identity matrix। So he says prove that these are equal to 0, नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसमें मुझे क्या क्या करना है? मुझे A मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे A क्यूब फाइंड आउट करना है। ये तो स्केलर से मल्टीप्लीकेशन है, इजी है, 23 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे सिर्फ A क्यूब फाइंड आउट करनी है। हाउ आई कैन फाइंड आउट द A क्यूब वैल्यू? व्हाट इज A क्यूब? आई कैन डू इट एज A इंटू A स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि मैंने हर एलिमेंट को स्क्वायर कर देना है, नो। सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट विल बी दैट, दैट इज नथिंग बट 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, इसको मैंने इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज दिस, गाइडेड मैट्रिक्स बना सकते हो आप, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने गाइडेड मैट्रिक्स क्या बनेगी इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ये तो बराबर ही आएंगे, क्योंकि 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो ये दोनों का ऑर्डर जो है वो 3/3 है, 3/3 है, तो ये दोनों बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो इसका मतलब जो मेरे पास इसमें गाइडेड मैट्रिक्स बनेगी वो भी किस ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू, ये रो लेनी है, ये कॉलम लेना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इसको भरने के लिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12, ये मेरा A11 बन गया। सिमिलरली सेकेंड 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 4, 3 इंटू 2 6, स्पेस की कमी है बच्चे। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1। सिमिलरली इसको करेंगे फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 1 इंटू 4 प्लस 4। एक बार एक रो लेनी है, सारे कॉलम्स लेके फर्स्ट रो बन जाएगी इसकी, सेकेंड रो लेनी है, सारे कॉलम्स लेके सेकेंड रो बन जाएगी इसकी, थर्ड रो लेनी है, सारे कॉलम्स लेके थर्ड रो बन जाएगी। सो व्हाट विल बी द सेकेंड वन, 3 इंटू 2, दैट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A11 A12 A13, A21 A22, A22 means second row second column, so 3 into 2 6, minus 2 plus 4, 1 into 2 plus 2, 3 into 3 9, minus 2, 1 into 1 plus 1। सिमिलरली थर्ड रो के साथ 4 into 1 4, 2 into 3 6, 1 into 4 4, 4 into 2 8, 2 into minus 2 minus 4, 1 into 2 4 into 3 12, 2 into 1 2, 1 into 1 plus 1। So what will be my A square, क्या बन गया, A square comes out to be 12 plus 6 18 plus 1 19, 6 plus 2 8, 8 minus 4 4, 8, then 4 plus 3 7 minus 6 1, 12, 9 plus 1 10 minus 2 8, 6 4 10 plus 4 14, 8 plus 2 10 minus 4 6, 12 2 14 plus 1 15। So this will be my A square. Let me check 1 12 8 14 6 and 15। So similarly अगर मुझे A cube निकालना है, so A will be again multiply by A square। इसको फिर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई किया, A क्या आ गया मेरे पास 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1, और फिर मैंने A square यही वाली लिख दी 19 4 8 1 12 8 14 6 and 15। अब मैं इसको A क्यूब को दोबारा से कैलकुलेशन, आपको पता लग गया कि कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। A क्यूब को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से आता है 63 46 69 69 minus 6 23 92 46 and 63, and this comes out to be 3/3 matrix। Clear?
अब मुझे करना क्या है इसमें, ए क्यूब मैंने फाइंड आउट कर लिया, सो व्हाट इज 23 टाइम्स ए, क्या आ जाएगा, मीन्स ए के हर एक एलिमेंट को 23 से मल्टीप्लाई कर दो। 23 को 1 से किया, 23 को 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46, 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 को किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 को किया, -46 एंड 1 से किया 23, देन 4 से किया, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8, 1 9, देन 2 से किया 46 एंड 1 से किया 23। अब मुझे सबको इकट्ठा करना है, ए क्यूब -23a -40 टाइम्स i, so what will be this, a क्यूब ये आ गया मेरा 92 46 63 माइनस, क्या करना है माइनस इसमें से, 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 23 माइनस 40 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, पढ़ा है हमने पहले वाले लेक्चर में, आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हर एक को किया 40 0 0 0 40 0 0 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, लेट मी कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट दिस। अब देखो फर्स्ट वाला क्या बनेगा, 63 माइनस 23 minus 40, so this will come out to be 0, 46 minus 46 0, 0 minus 0, 69 minus 69 0, 0 minus 0, 69 minus 69 0, 0 minus 0, 0, minus 6 minus minus plus, ये आएगा -6 minus minus plus -40, clear, this will be 23 minus 23 0, 0 minus 0, 0, 92 minus 92 0, 46 minus 46 minus 0, 0, लास्ट वाला 63 minus 23 minus 40, सो आप इसको कैलकुलेट करो, 63 में से 23 गए 40, 40 minus 40 0, सिमिलरली 46 में से 6 गए 40, 40 minus 40 0, 0 0, this is 40, 40 minus 40 0, so this will be matrix O, so we say that left hand side is equal to right hand side, so this way you can, I hope that you all have understood the concept of addition of two matrices, how to do the addition of two matrices, how to do the subtraction of two matrices, multiplication of two matrices by a scalar quantity and the multiplication of two matrices, और उसकी conditions आपको पता लग गई कि हमारी दो conditions कौन सी है multiplication करने के लिए। First condition, first rule है कि number of columns of first matrix that should be equal to number of rows of the second matrix. Guided matrix बनाएंगे, multiplication will be very easy, or you can easily score. In the next our lecture, I will try to give you about the lecture of my operations of the matrices, like जो हम column और row operations करते हैं. So thank you so much. Thank you.